All right, so I think I am live on YouTube. Let me check once and then we will jump into our live session. Today's topic is about, just a second, let me confirm whether we are live or not, or people are able to see me or not. Yeah, I think we are good. Okay. So, hello everyone. This is Akanksha again, your communication coach, leadership language coach. And today, what we are going to cover is first of all, apologies for coming after a long time on YouTube. I was getting engaged in some other opportunities and some other assignments. So that is the reason I could not come live on YouTube very frequently. But today I will make sure that whatever queries you have been asking me recently, whatever questions I was getting, whatever doubts I was getting on YouTube and other ways, I will definitely cover those questions. And today I'm going to speak in Hindi. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने YouTube में रिक्वेस्ट की कि आपके ज्यादातर जो वीडियोस हैं दैट इज इन इंग्लिश बात सही है एंड मैंने सोचा कि आज मैं ऐसे टॉपिक बनाती हूँ आज मैं ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में होंगे यदि मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ तो और या फिर मैं मोस्टली उन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं हिंदी में देने वाली हूँ इसके अलावा यदि आपके पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या आपका पर्सनल इमेज बिल्डिंग उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके प्लीज आप चैट में डालिए आप मुझे इन्फॉर्म करिए सो दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर दोज क्वेश्चंस हियर इन लाइव सेशन इटसेल्फ. Also, please make sure that if you're watching me in a replay, then please type replay so that I can confirm that what is the right time to conduct the live sessions and what is the majority of public are available at that time. I will conduct the next session so that you can attend the live session. Okay. And in case you have any question, any doubt in between, you can type in the chat box. I will cover those questions in the discussion during our live session. Okay. Let me confirm questions. Yeah. And I can answer. Perfect. I am audible also. So that's a good thing. Now, moving ahead. So, if you do not know me, I'm Akanksha Verma. I am a communication and leadership coach. If you're watching me for the first time, I help professionals, working professionals, freshers to just a second, just a second. Yeah. So today, so I was talking about myself. So if you're watching me for the first time, I am Akanksha. I help professionals, working professional freshers to improve their communication. Whether ये English की बात हो, English language improvement की बात हो, फिर चाहे आपके personal development की बात हो, फिर आपका image building की बात हो, और या तो फिर आपके communication at workplace. यदि इन सब में कहीं पे भी आपको confidence building में, public speaking में कहीं पर भी आपको कुछ challenges आते हैं, you can connect with me, you can drop a message to me, you can DM me, and I can help you the best I can do, best with my ability. ओके नाउ मूविंग अहेड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरे पास कुछ डाउट्स आते हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑडियंस मुझसे पूछती रहती है जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स विच इज कम्युनिकेटर्स डिजिटल गुरुकुल इसमें से जो भी ऑडियंस या मेरे कम्युनिटी मेंबर्स यदि मुझसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उन सभी को कलेक्ट करके आई हैव कम अप विथ अ कॉमन क्वेश्चंस लिस्ट जो कि जिससे कि आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि इन क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद आपका कम्युनिकेशन एकदम टॉप लेवल हो जाएगा. नो, आई एम सेइंग कि आपको एक तरीका मिल जाएगा कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे पहली बात. और दूसरी बात यह है कि आपको यदि इम्प्रूव करना है तो आपको एक वे ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा कि आप अपने आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. यदि आप खुद के थ्रू कर सकते हो बेस्ट बिकॉज इट इज
self-doable. If you are committed, if you are dedicated, if you know you can put your consistency there, definitely you can improve by yourself. लेकिन यदि लगता है कि नहीं, आपको कंसिस्टेंसी नहीं होती है, आपको कुछ मेंटरशिप की जरूरत होती है, आपको कुछ हेल्प की जरूरत होती है, then definitely you should connect with a mentor or you can connect with me. Now moving ahead and let me share my screen, जिसमें कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के डिटेल्स देने वाली हूँ. कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस मैंने निकाले थे, पहले मैं उसको शेयर करूंगी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस और द डाउट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके, सो इन क्वेश्चंस को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज आर्टिकुलेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग, जहां पे हम इंग्लिश स्पीकिंग के कॉमन चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे. जस्ट अ सेकेंड. Please confirm if you are watching me live. Please confirm whether you are able to see my screen or not, or if you are facing any challenge. Please confirm here. Okay, let me confirm if you are able to see my screen. Yeah, I hope you are able to see my screen. If anybody is watching me live, please confirm in a message box or the chat box that please confirm here. Yeah, that you are able to see my live sessions and screen share. Yeah, thank you for confirmation. Now moving ahead. So the topic जो आज मैं cover करने वाली हूँ, first is English speaking and articulation. ठीक है, इससे related questions होंगे. Then second topic है lack of confidence, कि हमें confidence कैसे build up करना चाहिए, और उससे related questions हम पूछेंगे. फिर कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, हमें क्या डाउट्स है आपके, हमें क्या कॉमन क्वेरीज आती है इससे रिलेटेड, दैट आई विल एड्रेस. एंड फाइनली आई विल एड्रेस अबाउट द इमेज बिल्डिंग एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ओनली. ठीक है, तो आज मेरा पूरा फोकस है कम्युनिकेशन पे. और यदि इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, या आपके दिमाग में अभी से कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन पुट द क्वेश्चन राइट नाउ सो दैट आई कैन टेक योर क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट. ओके, so now moving ahead, and the first topic is articulation and English speaking. So these are the common questions. Let me put it down here. Yeah, these are the common questions which I get mostly related to articulation and English speaking. I hope you are able to see my screen clearly. I hope you are able to see my questions clearly. If you have any challenge, thank you so much, Swati, for confirmation. If you have any challenge to watch my screen, let me know. Okay, now moving ahead to the mind map. So the first question which I get from the users or the audience is, why do I know a lot but struggle to explain it clearly? मतलब इसका ये हुआ कि आपको सब कुछ पता होता है. यदि मान लीजिए कि आप कुछ टॉपिक चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, एंड यू नो द आंसर, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है और आप अच्छे से उसको जानते हो, but still you are not able to explain it clearly. How many of you are struggling this point at this point? आप में से कितने लोगों को ये चैलेंज आता है कि आप ये आपको पता है आंसर, स्टिल यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली? सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट how do I avoid using filler words like actually, you know what, like? So these are the filler words we use unusual, and the one of the very common filler word is so. हर बात में सेंटेंस स्टार्ट करने के पहले हम सो, यू नो व्हाट, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. ठीक है, तो यदि इनमें से भी आपको कुछ चैलेंजेस आते हो तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है, द नेक्स्ट वन, हाउ कैन आई इंप्रूव माई वोकेबुलरी नेचुरली? अब इसमें से ये जो 3 क्वेश्चंस है आर्टिकुलेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड, यदि इसके अलावा भी आपका कुछ डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज पुट इन अ चैट बॉक्स. ठीक है, यदि नहीं है तो हम डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे. द नेक्स्ट वन इज, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द topic and the questions what I'm going to cover today. And if you have any other questions related to this other than these, please let me know in a chat box. नाउ इसके अलावा कुछ जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की यदि बात करूं, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या चैलेंज आता है? हाउ कैन आई स्पीक कॉन्फिडेंटली? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो हर के दिमाग में रहता है, चाहे वो कितना ही परफेक्ट कम्युनिकेटर क्यों ना हो, उसको फिर भी लगता है कि आई एम फेसिंग द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डू आई फ्रीज when someone asks me a question unexpectedly?
which means कि अचानक आपसे कुछ questions कर लिए जाते हैं और it is absolutely sudden that you are completely freeze down and frozen to answer that question. Do you have this problem? Please type yes in a comment box so that I know that I'm addressing the right common questions. Okay. The next one. Thank you. Thank you so much for sharing. The next one. Why do I lose confidence when people are watching me? ये किसको प्रॉब्लम है कि लोग आपके मन में डर है, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे लोग मुझे देख रहे हैं। जैसे ही आप सेंटर ऑफ द अटेंशन बनते हो, आप बीच में खड़े होते या लोगों के सामने खड़े होते बोलने के लिए, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग नर्वस बिकॉज लोग आपको देख रहे होते हैं। यू गेटिंग शिवरिंग बिकॉज लोग आपको देख रहे हैं। यदि इस तरीके का प्रॉब्लम है कुछ, तो वो भी आप मुझे कंफर्म करो चैट। And then finally, how do I stop feeling inferior to fluent English speakers? आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि जब कोई आपसे बेटर इंग्लिश स्पीकिंग वाला आपके सामने बोलता है, आप तुरंत इंफीरियर फील करने लगते हैं, एंड तुरंत आप इंग्लिश स्पीकिंग करना बंद कर देते हैं क्योंकि आपसे ज्यादा बेटर स्पीकिंग कोई और कर रहा है, राइट? सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये चारों के अलावा, इन चार क्वेश्चंस या कॉमन प्रॉब्लम्स के अलावा यदि कोई आपको प्रॉब्लम है, प्लीज टाइप इन अ कमेंट बॉक्स और द चैट बॉक्स इन YouTube लाइव. If you're watching me replay, that is also fine. I will address your question later on, but please put your questions here so that I can understand what are your queries and doubts, and I can cover in the next session or in the comment box. I would reply. Okay, so this is the second topic which we are going to cover. Now, next one is कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। तो अभी तक हमने क्या देखा कि बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग में क्या क्या चैलेंज आते हैं और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कौन कौन से कॉमन चैलेंजेस है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ कैन आई बिल्ड इन्फ्लुएंस एट वर्क। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक लेवल अप जा रहे हैं। एक लेवल अप जा रहे हैं मतलब हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम यदि वर्क प्लेस पे किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी ऐसे स्कूल में काम करते हैं या किसी किसी ट्रेनिंग स्पेस में काम करते हैं, तो वहां पे मेरा इन्फ्लुएंस कैसे हो, हाउ शुड आई कम्युनिकेट सो दैट आई कैन बिल्ड माई इन्फ्लुएंस। The next question, which is a very common question, how can I disagree without sounding rude? आप लोगों को कितने लोगों को लगता है कि यदि आपने किसी काम के लिए मना कर दिया, किसी पॉइंट पे डिसअग्री हुए, तो you would sound like rude or you would sound rude? How many of you feel that? ठीक है, तो ये भी एक कॉमन डाउट रहता है कि यदि मैंने मना किया या किसी पॉइंट पे मैं डिसअग्री, तो कहीं लोग मुझे रूड ना समझे, राइट? नेक्स्ट वन, हाउ डू आई हैंडल डिफिकल्ट कन्वर्सेशन एट वर्क, स्पेशली विथ योर बॉस या स्पेशली विथ योर टीम मेंबर व्हेन देयर इज अ heat discussion is going on or heated topic is discussed और आपके बॉस के साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हो रही है, आपके बॉस के साथ किसी टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो इन सब समय पे, इन सब पॉइंट्स पे, इन सारे मोमेंट्स पे आपको कैसे मेक श्योर करना है कि आप अपने पॉइंट्स को विदाउट इमोशन, विदाउट गेटिंग इमोशन, यू कैन पुट योर पॉइंट विदाउट हेजिटेशन और विदाउट एनी गेटिंग इमोशनल। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउ कैन आई से नो टू अदर्स एट वर्क प्लेस। कितने लोग हैं आप लोगों में से जो ये स्ट्रगल करते हैं कि यार मैं तो नो तो आता ही नहीं है बोलना, नो बोल दिया तो बॉस बुरा मान जाएगा, नो बोल दिया तो लोग मुझे आलसी समझेंगे या मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। कितने लोग हैं आप में से जो ये फेस करते हैं या ये चैलेंज फेस कर रहे हैं? प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स। ठीक है, अब ये चार जो डाउट्स है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, इसके अलावा यदि कुछ डाउट है, प्लीज पुट इन अ कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन कवर दैट क्वेश्चन एज वेल। नाउ नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज इमेज बिल्डिंग। ठीक है, अब इमेज बिल्डिंग में मैंने ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं किए क्योंकि वो एक अलग टॉपिक ही हो जाता है, बट हियर आई एम टेकिंग इमेज बिल्डिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ओनली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, हाउ कैन आई क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, ये तो कॉमन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सबको अपने फर्स्ट इंप्रेशन की जरूरत होती है या बनाने का बहुत जोश रहता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वेदर फर्स्ट इंप्रेशन जरूरी भी है कि नहीं है, और यदि जरूरी है तो हमें इसको बनाना कैसे है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर सीनियर प्रोफेशनल और हु हैव ऑलरेडी 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस, उनका क्वेश्चन रहता है हाउ कैन आई बिल्ड एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, कि लोग मेरी सीनियरिटी को समझें,
ये ना हो कि सिर्फ आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, कोई आपको सीनियर मानता नहीं है, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इन क्रिएटिंग इमेज बिल्डिंग, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आज मैं कवर करने वाली हूँ। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कुछ टॉपिक है या कुछ क्वेश्चन है जो मुझे कवर करने चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो सो दैट आई कैन कवर इन टूडेज लाइव सेशन। ठीक है, यदि आज कवर नहीं होगा तो डेफिनेटली आई विल एड्रेस दैट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, लेकिन आई विल मेक श्योर कि हम सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करके ही इस सेशन को खत्म करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड coming back again to the first topic, that is articulation and English speaking. इसमें first question जो हमारा था कि मुझे सब कुछ आता है, still I struggle to explain it clearly. ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सबसे पहले ये समझो कि आप जब आपके देखो जब आपको पता होता है ना किसी चीज का आंसर, तो हम उसको दिमाग में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि मैं ये बोलूं ये बोलूं ये बोलूं ये बोलूं ये भी बोलूं ये भी बोलूंगा सब बोलूंगा, राइट? इस चक्कर में क्या होता है कि आपके सारे पॉइंट्स मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, प्लीज टाइप यस यदि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि आप सारे पॉइंट्स को आप सब कुछ जानते हो उस टॉपिक के बारे में। मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया और आप सब कुछ जानते हो उस टॉपिक के बारे में, तो आपके दिमाग में एकदम फ्लड्स ऑफ थॉट्स आता है कि मुझे ये भी शेयर करना है, मुझे ये भी बताना है, मुझे वो भी बताना है। और उस चक्कर में क्या होता है, आपके थॉट्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, और उसके कारण आप उसको इजीली और सिंपल वे में क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस चैलेंज? ठीक है, सो दिस इज वन सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या होती है कि आपको कई बार वोकेबुलरी याद नहीं आती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि अननेसेसरी वोकेबुलरी की जगह पे उसको और भी एक्सप्लेन करने लगते हो, और उस आंसर को इतना ज्यादा लंबा कर देते हो कि लोग सुनने वाले बोर हो जाते हैं और सुनने वाले समझ नहीं पाते कि आप कहना क्या चाहते हो। फिर वो दिमाग में आता है, अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो, बोल दो ना सीधे सीधे, राइट? तो यदि ये हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि उसने पूछा क्या है, और आप उसको गोल 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 घुमाए पड़े हो घुमाए पड़े हो घुमाए पड़े हो, आप टू द पॉइंट बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके आंसर्स हमेशा टू द पॉइंट होने चाहिए। टू द पॉइंट मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आई विल टेक वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स, सो हर एक बंदा यहाँ पे रिलेट कर पाए। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन किया गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और हाउ डू यू फील अबाउट द वर्ल्ड टुडे, whether we are the world is developing or not, the world where the direction we are moving ahead, is it the right direction of growth or not? नेशन वाइज ले लो, वर्ल्ड वाइज ले लो, सब कुछ ले लो, जो अभी वर्ल्ड का सिचुएशन है, क्या वो सही सिचुएशन है कि या हम कुछ उलझ रहे हैं या हम कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, इकोनॉमिक वाइज है, हिस्ट्री वाइज है, जियोग्राफी है, जो वॉर चल रहा है, जो करंट अफेयर है, वो सारी बातें आपको शेयर करनी है। आप बहुत सारा कुछ जानते हो, लेकिन क्योंकि आप इतना सारा जानते हो, आप सारी बातें एक साथ शेयर करना चाहते हो नहीं। तो हमें क्या करना है, वन पॉइंट एट अ टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर इवन स्टार्टिंग सेइंग एनीथिंग, before even starting speaking, you should articulate your answer, at least the points in your mind. Take 30-second pause before answering and then articulate कि मैं पहले ये पॉइंट बोलूंगा। आप सारे आंसर, अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर लो दिमाग में कि पहला पॉइंट मैं ये बोलूंगा, सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलूंगी, थर्ड पॉइंट मैं ये बोलूंगा, फोर्थ पॉइंट में मैं ये बोलूंगा। ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर आंसर इवन बिफोर स्टार्टिंग। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को एकदम क्लियरली दिमाग में बिठा सकते हो। मैं अपनी क्लास में जो मेरी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको मैं बताती हूँ प्रेप मेथड यूज करने का, विच इज नोन एज, मैं यहाँ पे टाइप करके बताती हूँ सो दैट यू इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। PREP. P is point, R is reasoning, E is example, and P is reinforcement of the point.
ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस मेथड से, इस पॉइंट से यदि आप चलोगे तो आपके आंसर हमेशा टू द पॉइंट रहेंगे, और आप ना तो बातों को गोल गोल घुमाओगे और ना ही आपके बातों में उलझन रहेगी। ठीक है, लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। ठीक है, ओके, नाउ लेट मी डिलीट इट। कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा है, कहीं पे भी कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स सो आई कैन मेक इट क्लियर मोर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं जो भी बता रही हूँ ना आप लोगों को, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड कि सिर्फ यही एक मेथड है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द मेथड जो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर मिल सकता है, जिससे आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को या स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर आर अदर मेथड्स ऑल्सो। इफ यू वांट टू नो द अदर मेथड्स, प्लीज कनेक्ट विथ मी। ओके, डीएम कर दो, मैसेज कर दो, आई विल कनेक्ट विथ यू। नेक्स्ट वन, how do I avoid using filler words like actually, like that? So ये सारे फिलर वर्ड्स हैं जो हमें अननेसेसरीली यूज नहीं करने, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम यही यही यूज करते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है और आप बोलने वाले हो, वहां पे पॉज ले लो। ठीक है, जहां पर भी, एंड बी कंफर्टेबल विद पॉजेस। हम क्या सोचते हैं कि अरे पॉज ले लिया तो सामने वाले को लगेगा मुझे आता नहीं आंसर। नहीं, इट्स ओके टू टेक पॉज। आप किसी भी स्टीव जॉब्स की स्पीच सुनो, आप किसी भी बड़े किसी सेलिब्रिटी की स्पीच सुनो, पब्लिक फिगर की स्पीच सुनो, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद पॉजेस। तो यू शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल विद द पॉजेस, सो दैट आप आराम से अपने बातों को सोचो, आप कौन सी वोकेबुलरी यूज करना चाहते हैं, आप कौन सा राइट वर्ड यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। टेक टाइम टू थिंक अबाउट दैट वोकेबुलरी, दैट वर्ड, एंड देन स्टार्ट कंटिन्यूइंग, एंड देन कंटिन्यू योर सेंटेंस। और कभी ऐसा भी लगता है कि आपको आपको भूल गया कि आप क्या बोल रहे थे, यू कैन स्टार्ट अगेन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी यूज वन वर्ड। ओके, I have to say righteous. I want to use the word righteous, which means धार्मिक, धर्म। ठीक है, कि मेरे धर्म के हिसाब से, मेरे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ये करना सही है। तो एंड आई फॉरगॉट द वर्ड राइटियस। ठीक है, एंड आई वुड, इफ यदि मैं ऐसा यूज करूं, आई आई थिंक आई शुड यूज राइटियस, मुझे भूल गया तो मैं कर रही हूँ, नहीं, आई शुड टेक पॉज and I should think about the word. If I'm not able to recall righteous word at that point of time, मैं शायद वैल्यू सिस्टम यूज कर लूं, मैं शायद राइट मेथड यूज कर लूं, कुछ भी एक दूसरा साइमल्टेनियस वर्ड या जिसको बोलते हैं ना सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन पॉज लेना इजी है। एक्चुअली ये सब यूज करने की जगह पे हम पॉज लेके एक वर्ड को सोच ले और फिर उसको बोले, वो ज्यादा बेटर लगता है। नेक्स्ट वन, हाउ कैन आई इंप्रूव माई वोकेबुलरी नेचुरली। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बहुत सारे लोगों को गलत मेथड यूज करते देखा है वोकेबुलरी के लिए। सबसे पहले तो आप यदि वोकेबुलरी को रटते बैठे हो, एक नोटबुक बनाई है आपने, आप उसको वोकेबुलरी डेली लिख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। एक तो एकदम से आप कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी में जाना मत। ठीक है, कि आपको एकदम कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसे 100 वर्ड्स निकालो जो आपके डे टू डे कन्वर्सेशन में काम आते हैं। सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को हमें अपनी मसल मेमोरी में रखना है, अपनी एक्टिव मेमोरी में रखना है, ताकि यदि मैं सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी की जगह पे मुझे अपोलॉजी यूज करना है। इसको मुझे इंटेंशनली अपने वोकेबुलरी में, अपनी डिक्शनरी में, अपनी एक्टिव मेमोरी में रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, लिख के नहीं। आपका जो वर्क स्टेशन है, यदि ऑफिस पे या घर पे, सिर्फ एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वोकेबुलरी, 3 वर्ड्स आपको लिखने हैं वहां पे। ठीक है, लिखने के बाद आपको दिन भर में 10 बार एक वर्ड को यूज करना है। यदि मैंने कहा कि आज मुझे वोकेबुलरी यूज करनी है सॉरी की जगह पे अपोलॉजी, तो अपोलॉजी को मुझे 10 बार एक दिन में यूज करना है। So how many words we have chosen in a day? 3 words. ठीक है, 3 into 10 each word, तो कितने हो गए 30। So I will make sure कि एक दिन में ऐसे 30 sentences बोलूं जिसमें ये 3 words use हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट डे
नेक्स्ट 3 वर्ड्स, तो आज के 3 वर्ड्स जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, प्लस नेक्स्ट डे के 3 वर्ड्स जो नए वर्ड्स मैं सीखते जा रही हूँ वो 3, तो कितने हो गए टोटल मेरे पास वर्ड्स? 6। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 30 सेंटेंसेस प्रीवियस डे के भी बनाने, नहीं, उसके 2 सेंटेंसेस काफी होंगे, उसके 3 सेंटेंसेस काफी होंगे, लेकिन फोकस कहाँ करना है? नए वर्ड्स को। इस तरह से आपको अपने वोकेबुलरी, अपनी डिक्शनरी को कंपाउंड करते जाना है, विथ नॉट ओनली बाय राइटिंग कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको समझना है कि इसका यूसेज कहाँ है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का यूसेज कहाँ पर है, और उसको एक्चुअली अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते जाना है। इस तरीके से आपका एक चलती फिरती डिक्शनरी तैयार हो जाएगी जो आप डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ नोटबुक बना के वोकेबुलरी लिखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली उन वर्ड्स को डे टू डे बेसिस पे यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? अपने सामने लिस्ट बना लो, 3-3 वर्ड्स हर दिन यूज करते जाओ, ऐड करते जाओ उस लिस्ट में, और इसी तरह से आपकी वोकेबुलरी कंपाउंड होती जाएगी। फिर एक वीक में, जैसे 6 दिन आपने ऐड किया, एक दिन, वीक में एक दिन आप उन सबको रिपीट करो। ठीक है, सिर्फ उन सबको रिपीट करना है। फिर नेक्स्ट वीक में दूसरे वर्ड्स, इस तरीके से एक वीक में जो आपके पहले के एक वीक के वर्ड थे और जो नए एक वीक के हो गए वर्ड, राइट, तो इन 2 वीक्स के प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट वीक में। तो इस तरीके से 21 डेज का नई वोकेबुलरी, और जो मंथ का लास्ट वीक होता है 30th, मतलब लास्ट वीक जो होता है उसमें 4 वीक मान लीजिए, एक महीने में 4 वीक होते हैं, ठीक है, तो 3 महीने को इस तरीके से डिवाइड करो कि मुझे नए वर्ड सीखते हैं, और जो लास्ट वीक है मंथ का उसमें सारे रिवाइज करने हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। एंड बिलीव मी, यदि आप एक दिन में 3 वर्ड्स लेते हैं और 20 डेज आप नए नए वर्ड्स निकालते हैं, यू विल हैव 60 वर्ड्स, राइट, और 60 वर्ड्स को लास्ट 8 डेज में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से विद इन 3 मंथ्स यू विल हैव न्यूमरस वर्ड्स जो आप डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वोकेबुलरी इंप्रूव करनी है। नाउ मूविंग अहेड टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में सिर्फ सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हम कॉन्फिडेंस क्यों लूज करते हैं? वो मुझे जज करेगा, वो मुझे गलत बोलेगा, वो मुझे स्टूपिड बोलेगा, वो मुझे डम समझेगा, यदि मैंने मिस्टेक की उसके सामने तो वो क्या बोलेगा मेरे बारे में। अरे इट्स ओके, वो जो भी बोलेगा बोलने दो, यहाँ पे मेरे खुद के इम्प्रूवमेंट की बात है। तो डोंट फोकस ऑन अदर्स के सामने लोग क्या बोलेंगे, फोकस ऑन आवर सेल्फ की यदि मैंने एक मिस्टेक की उससे मेरा इंप्रूवमेंट होता है, तो ऐसी 100 मिस्टेक्स मुबारक। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बी कंफर्टेबल विथ मेकिंग मिस्टेक्स, लेकिन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना इज द मैजिक। एक आपने मान लीजिए टेंस में मिस्टेक कर दिया, आपको पता है यहाँ पे मुझे चेंज करके यहाँ पे मुझे प्रेजेंट टेंस की जगह पे पास्ट टेंस यूज करना था, अभी आपने पता चल गया ना, तो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि वो मिस्टेक दोबारा ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको हाउ कैन आई स्पीक कॉन्फिडेंटली। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज बी कंफर्टेबल विथ मेकिंग मिस्टेक्स। Nobody is perfect in the world. Even I'm not perfect today, right? So perfection is a myth. If you feel कि एक दिन मैं perfect हो जाऊंगा तब मैं बोलूंगा confidently, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज के दिन से आप एक एक परसेंट अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। प्रैक्टिस के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस पहले आएगा और फिर आप बाद में इम्प्रूव करो, नो, ऐसा नहीं होगा, राइट? सो यू हैव टू वर्क इम्प्रूवमेंट, वर्क ऑन योरसेल्फ, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, एंड दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इसके अलावा दिस इज अ वेरी जेनेरिक आंसर, सी आई एम गिविंग अ वेरी जेनेरिक आंसर हियर। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो पहली बात है कि आप मिस्टेक करिए, मिस्टेक से घबराइए मत। दूसरा, मिस्टेक से लर्न करिए, उसको रिपीट मत करिए। थर्ड पॉइंट,
आपको लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं, इसके कारण आप फ्रीज हो जाते हो, प्लीज चेंज योर स्पॉटलाइट फ्रॉम यू टू द ऑडियंस, कि लोग मुझे देख रहे हैं, नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं लोगों से कुछ शेयर करने के लिए। तो क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, इसलिए ऑडियंस मुझे सुनने के लिए बैठी है। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है मुझे लोगों से शेयर करना है, इसलिए आई नीड टू टॉक, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस का ना एक मंत्र आप लोगों को देती हूँ। जब भी आपको कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है ना, आपके आजू बाजू में एक कॉन्फिडेंस सर्कल बना लो, विच आई कॉल एज कॉन्फिडेंस ऑरा, विच इज अ पार्ट ऑफ एनएलपी। एनएलपी इटसेल्फ इज अ डिफरेंट टेक्निक, वो ब्रेन रिलेटेड टेक्निक है, वो अब हम बाद में डिस्कस करेंगे, और मे बी यू कैन वॉच वन ऑफ माई वीडियोज। लेकिन एनएलपी में एक मेथड है दैट इज नोन एज द सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप जब भी किसी से बात करने जा रहे हैं जहां पर आपको पता है कि मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाऊंगा, जहां पे आप नर्वस फील कर रहे हैं, अपने आप को आंख बंद करके देखिए कि एक सर्कल है, कॉन्फिडेंस का एक सर्कल है, आप उस सर्कल के अंदर जा रहे हैं, एंड देन यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन प्ले विथ योर माइंड, और दैट इज हाउ यू कैन फेक योर कॉन्फिडेंस अंटिल यू मेक इट। ठीक है, तो मेक श्योर कि जैसे ही आप अपने माइंड को इस चीज के लिए तैयार कर ले कि हमेशा उस सर्कल में, द कॉन्फिडेंस सर्कल, राइट, उस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, और जब भी आप नर्वस फील कर रहे हैं तुरंत अपने कॉन्फिडेंस सर्कल में पहुंच जाइए, एंड दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड विच आई टीच इन माई कम्युनिटी मेंबर्स। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई स्टॉप फीलिंग इंफीरियर टू फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स। तो कई बार मेरे पास लोग आते हैं ये बोलने के लिए कि मैम, मैं वैसे तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा बेटर कोई इंग्लिश बोल रहा है, वहां पे मेरी बोलती बंद हो जाती है, या वहां पे मैं इंफीरियर फील करता हूँ और फिर मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। ये लोगों को ऐसे आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये चैलेंज है? ठीक है, ऐसे बहुत कॉमन चैलेंज है। अगेन आई एम टेलिंग यू, यदि आपको इंफीरियर फील होता है सामने वाले से, तो आपको नहीं पता है कि उस बंदे ने कितनी मेहनत की है अपने इंप्रूवमेंट के लिए। आपको नहीं पता है कि वो बंदा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, राइट। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। हो सकता है कि वो जो बंदा है वो 12 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के आया है, उसने 12 साल इंग्लिश टू इंग्लिश बातें की है लोगों से, इसलिए वो बेटर इंग्लिश बोल रहा है। हमने अभी स्टार्ट किया, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, कुछ महीनों से, कुछ सालों से, तो इट्स ओके, राइट। सो प्लीज डोंट फील इंफीरियर if you are speaking simple English or low level English. It's okay, it's okay, because we are in a learning mode, right? तो कभी भी एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि हमें किसी का बैकग्राउंड नहीं पता है, right? So please keep that in mind, okay? Never be afraid of learning new things. So English, if you're learning English for the first time or very recently, it's okay to make mistake, and don't feel inferior about it, okay? Now moving ahead to the next topic, and that is communication at workplace. ठीक है, how many of you have this problem? Again, it is again a common topic, right? So मैं सिर्फ कॉमन क्वेश्चंस को एक साथ एड्रेस करूंगी, जो डिफिकल्ट, जो डिफरेंट है उनको अलग एड्रेस करूंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई बिल्ड इन्फ्लुएंस एट वर्क, एंड हाउ कैन आई, अच्छा ये सारे ही अलग है, ठीक है, तो मैं एक एक करके एड्रेस करती हूँ। हाउ कैन आई बिल्ड इन्फ्लुएंस एट वर्क? तो सबसे पहले तो अपने आप को फोर्स मत करो इन्फ्लुएंस बिल्डिंग के लिए। मुझे इन्फ्लुएंस बनाना है, मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये कभी मत सोचो। ये सोच के आप ऑफिस मत जाओ। आप सिर्फ अपना काम करो विथ परफेक्शन। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मुझे बॉस को इम्प्रेस करना है इसलिए मैं काम कर रहा हूं, नहीं। आप इसलिए सोचो कि आई एम परफेक्ट इन दिस वर्क, आई नो हाउ टू डू माई जॉब, एंड आई एम डूइंग इन अ राइट वे, I know how to communicate this method. So don't force yourself to impress others. Impression अपने आप बन जाएगा। देखो, आप हमेशा ध्यान देना, जो लोग आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में, आपके टीम में जिनका इंप्रेशन अच्छा है वो सबसे कम बोलते हैं।
ठीक है। तो अपने पत्ते, वो बोलते ना अपने पत्ते टाइम पे खोलो, अपने पत्ते हमेशा मत खोलो, राइट। तो जो आपका हाई, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको ऑन पॉइंट समय आने पर ही खोलो। ये हमेशा इंप्रेशन के चक्कर में अपने पत्ते खोलते मत रहो, राइट। सो जब राइट टाइम हो तभी अपने पत्ते खोलो। दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड योर इंप्रेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स हैं विच यू कैन कनेक्ट एंड आई विल शेयर विथ यू। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हाउ डू आई हैंडल डिफिकल्ट कन्वर्सेशन एट वर्क। अब जैसे मैंने बोला था कि आपको किसी चीज को, जो टीम मेंबर्स को कन्विंस करना है किसी पॉइंट को लेके, या अपने बॉस को कन्विंस करना है आपके पॉइंट को लेके, हाउ विल यू डू दैट, एंड व्हेन स्पेशली व्हेन बॉस इज नॉट गेटिंग एग्री विथ योर पॉइंट, राइट, ही इज नॉट कन्विंस्ड विथ यू, राइट। तो ऐसे पॉइंट में हमेशा बी एसर्टिव, बी एफर्मेटिव। आप इमोशनली गुस्सा मत शो करो, एंगर मत शो करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। आप जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, आप जितना फाउंडेड रहोगे, वो सामने वाला उतना ही कन्विंस हो जाएगा आपसे। ठीक है, आप अपने पॉइंट पे टिके रहो, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करते रहो, लेकिन डोंट ब्रिंग ईगो विद इन दिस। यदि आप आउट ऑफ ईगो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए लगे हुए हो, देन प्लीज लिव इट। Okay, so these are the points you have to take care. Just be assertive when you are at difficult conversation, and some point of time, देखो difficult conversation में कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है difficult conversation ना हो सकता है difficult situation हो। So just go with the flow at that point of time। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको गरम, जब हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसी समय ही अपना पॉइंट प्रूव करना है। हो सकता है उस समय आपको वो सिचुएशन डिले करके, जब सबका दिमाग शांत हो जाए उसके बाद अपने पॉइंट को रखोगे, शायद बात बन जाए, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू टॉक योर पॉइंट एट द राइट मोमेंट, एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन आई डिसएग्री विदाउट साउंडिंग रूड। अगेन अगेन सेम, यदि सामने वाले को कन्विंस करना है तो कभी कभी आपको डिसएग्री भी करना है, राइट। तो डिसएग्री विदाउट रूड, बी असर्टिव। आप, यदि आपको किसी पॉइंट पे डिसएग्री करना है तो आस्क फॉर द जस्टिफिकेशन, कि सामने वाला, सबसे बड़ी बात, सामने वाले के पॉइंट को समझने की कोशिश करो। आउट ऑफ ईगो डिसएग्री मत हो कि उसने मुझे लास्ट टाइम मना किया था, इस बार मैं मना करूंगा, इस बार तो उसकी धो दूंगा बिल्कुल, राइट। इस माइंडसेट के साथ मत जाना, क्योंकि कई बार है ना, आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ कंपटीशन हम ये करते हैं कि उसने मना किया तो मैं भी मना करूंगा, राइट। ये मत करना। सबसे बड़ी बात है कि आप डिसएग्री करो, एक जेन्युइन पॉइंट को करो। यदि आपको सच में लगता है कि ये पॉइंट जेन्युइनली गलत है, देन ओनली यू डिसएग्री ना, राइट। तो विदाउट साउंडिंग रूड, बी स्टिक टू योर पॉइंट, गिव जस्टिफिकेशन टू योर पॉइंट, एंड देन गिव एग्जांपल कि इसके करने से ये हो जाएगा, इसके करने से ये एडवांटेज है, इसके करने से ये डिसएडवांटेज है। मे बी आप कन्विंस कर लो इजिली विथ योर जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखो। हाउ कैन आई से नो टू अदर्स एट वर्क प्लेस। अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि आपके नो को आपका बॉस पर्सनल ले, अच्छा मुझे मना किया, चलो मैं देखता हूँ नेक्स्ट अप्रेजल में। ये चैलेंजेस यदि है, यदि आपका बॉस थोड़ा सेंसिटिव है, तो यू हैव टू बी लिटिल मैनिपुलेटिव। ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है वर्क प्लेस पे, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी होना पड़ता है, और थोड़ा सा सेंसिटिव भी होना पड़ता है सिचुएशन को लेके। तो इन सब चीजों को मिला जुला के जब आप नो बोलोगे, पीपल विल बी कन्विंस्ड। नो के साथ आपको ऑप्शन भी देना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आकांक्षा ये काम कर दो, नो सर आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ बिकॉज आई हैव अदर वर्क, बट आई कैन डू टुमारो, इज इट ओके? नहीं तो फिर प्रायोरिटी फिक्स करो, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू बी लिटिल डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव व्हेन यू आर टॉकिंग, एंड स्पेशली व्हेन यू आर सेइंग नो। तो नो के साथ आपने तो मना कर दिया, लेकिन उसके साथ एक ऑप्शन भी दे दो कि सर ये काम नहीं करेगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप उसको काम दे सकते हो, ही इज वेरी गुड इन इट एंड ही इज फ्री नाउ, राइट। तो इस तरीके से कुछ आपको ऑप्शन साथ में देना पड़ेगा, डायरेक्टली आप नो नहीं बोल सकते, ठीक है।
So these are the common thing which you need to take care while communicating. These are the very generic points. But in case you have other points also which you want to discuss, please let me know. We will discuss in a comment box, and I will take care, or I will take in the next session, next live session. Okay. So these are the communication at workplace. Now moving to image building. ठीक है, इमेज बिल्डिंग का एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक टच पॉइंट हम करते हैं. सो सबसे पहले आता है इमेज बिल्डिंग. दो तरीके से होती है, पता है. एक होता है इमेज बिल्डिंग आपके प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे, और एक होता है इमेज बिल्डिंग सोशल गेट टुगेदर. ठीक है. जब सोशल गेट टुगेदर की बात करती हूँ, मतलब आपके कजिन की शादी हो गई, मतलब आपकी ऑफिस पार्टी हो गई, मतलब आपके आपके फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है, एनिवर्सरी है, या कुछ भी है, राइट, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, तो वो हो गया आपका सोशल गैदरिंग. अब एक जगह होता है आपका सोशल गैदरिंग, और एक होता है प्रोफेशनल सेटअप, कि भाई आपका क्लाइंट कोई आया है, कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर आया है, उसके साथ आपकी पार्टी होने वाली है, तो दैट इज योर ऑफिशियल गैदरिंग, राइट. अब आपको फर्स्ट इंप्रेशन वहां पे डालना है. आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो क्या करना है. सबसे पहले लोग आपको क्या देखेंगे, आपका अपीयरेंस देखेंगे. ठीक है. फिर आपका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, और फिर आपका कम्युनिकेशन आएगा. तो ये 3 पॉइंट इसी ऑर्डर में आपको मैनेज करना है. फर्स्ट पॉइंट आपका अपीयरेंस, आपका ओवरऑल लुक कैसा है. कैजुअल पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि हाफ पैंट या बरमूडा पहन के चले जाना है, या शॉर्ट्स पहन के चले जाने हैं, राइट. सो दैट इज हाउ यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट योर अपीयरेंस. हाउ डू यू लुक, हाउ इज योर हेयर, हाउ इज योर ओवरऑल अपीयरेंस, राइट. सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू टेक केयर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज. ठीक है. आप अपने आप को कॉन्फिडेंट शो अप कर रहे हो, कि आप अपने आप को इंट्रोवर्ट शो अप कर रहे हो, कि आप लेजी हो, लाउजी करके वहां काउच में बैठे हुए हो, या आप लोगों से मिंगल अप हो रहे हो, लोगों से सोशलाइज कर रहे हो. ये सारी चीजें मैटर करती है, ये सारी चीजें मैटर करती है. एंड बिलीव में आपका जजमेंट ऑफिस में कम होता है, ऐसी सोशल गैदरिंग में ज्यादा होता है. तो यदि आपको सच में बॉस को इम्प्रेस करना है, इन सब पार्टीज में जरूर जाओ, इन सब पार्टीज में अपना नेटवर्क बनाओ, एंड दैट इज हाउ यू कैन बिल्ड इमेज इन फ्रंट ऑफ योर बॉस एंड इन फ्रंट ऑफ योर टीम मेंबर्स. ठीक है. डोंट थिंक कि मैंने काम कर दिया, मेरा काम हो गया, बस मेरा काम खत्म, मेरा काम से काम मतलब रखो, मुझे ये सब नेटवर्किंग करना पसंद नहीं है. नहीं, आजकल ऐसा नहीं चलता है, राइट. सो यू हैव टू बिल्ड योर इमेज एंड यू हैव टू बी सोशल. भले ही आप इंट्रोवर्ट हो, कीप दैट वन साइड, बट आपको मिंगल अप होना चाहिए, आपको सोशलाइज करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. Next point is so the first impression, how can you build first impression? First is your appearance, second is your body language, and third is your communication, right. तो communication comes, जो भी मैंने ऊपर के points बताए वो सब, and how to talk to, how to initiate a talk, that is also very important in such social gathering. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाता है कि आपको किसी स्ट्रेंजर्स से नेटवर्किंग करना है, तो हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है. तो इन तरह के क्वेश्चन जो भी हैं, आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी किस वीडियो को रिफर करना चाहिए. और यदि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो प्लीज पुट ऑल्सो दैट इनटू कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन एड्रेस योर क्वेश्चन. ओके. नाउ मूविंग अहेड टू हाउ कैन आई बिल्ड एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस. अब आता है, अब थोड़ी सीनियर प्रोफेशन की बात करते. ठीक है. आपका एक्सप्रेशन है अराउंड आपका एक्सप्रेशन है, आपका एक्सपीरियंस है अराउंड 5 to 7 to 10 years, और अब आपको थोड़ा एक अपना ब्रांड बिल्डिंग करनी है एज एन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आपका प्रमोशन ड्यू है, आप सीनियर लीडरशिप के ऊपर लुक आफ्टर कर रहे हो, आपको फ्रॉम आप सीनियर मैनेजमेंट में जाने का प्लान कर रहे हो. सो यू शुड बिल्ड योर इमेज लाइक दैट. सो उसके लिए क्या करना है, यू शुड बिहेव लाइक एग्जीक्यूटिव. ये मत सोचना कि मेरा प्रमोशन हो जाए उसके बाद मैं एज अ लीडर, एज अ एग्जीक्यूटिव बिहेव करूंगा ना. लोग तभी आपको प्रमोट करेंगे जब आप उसके लिए एलिजिबल शो करोगे अपने आप को. सो एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले असर्टिव लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है. सेकेंड पॉइंट, आपका एक पर्सोना ऐसा आपको कैरी करना पड़ेगा. आपको ऐसा शाहरुख खान का, यदि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ शाहरुख खान का, he has hired image consultancy to build his brand. How he has built his brand? As a most romantic hero in the Bollywood.
ही इज द किंग ऑफ रोमांस, राइट? तो वो किंग ऑफ रोमांस अपने आप नहीं हो गया, उसने अपनी इमेज इस तरीके से बिल्ड करवाई है. सो ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, वीक बाय वीक, यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट योर ब्रांड एज यू वॉन्ट टू पोजिशन इन योर ऑफिस और एट योर वर्क प्लेस. ठीक है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से बातें करते हैं, लोग आपको किस तरीके से कंसिडर करते हैं, आपकी पोजीशन क्या, पोजीशन डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लोग आपका इंप्रेशन क्या है लोगों के ऊपर, आपको लोग किस तरीके से कंसिडर करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके से लेते हैं, आपका ऑरा लोगों के ऊपर कैसा है, ये सारी बातें मैटर करती है, right? And it takes hell lot of efforts to make your brand as your executive presence. तो यदि आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स और चाहिए, प्लीज पिंग इन अ कमेंट बॉक्स और डीएम में. ओके, सो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं whenever you are talking about communication, personal development और image building. ठीक है? Combinedly this matters in your career growth, in your business, in your personal development and grooming. ठीक है? तो इसके अलावा ये जो भी मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं आपके सामने, वेदर इट इज आर्टिकुलेशन इन इंग्लिश, वेदर इट इज कॉन्फिडेंस, वेदर इट इज कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस और ब्रांड बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग, राइट? इन सारे पॉइंट्स को यदि आपको इन डेप्थ समझना है, please connect with me. We will have one-on-one session, and that is how we will address your particular challenge or doubt. Okay, so that is it for the day, and thank you so much for joining in, and thank you so much every community member for community care, like the members of Communicators Digital Gurukul. We usually conduct the inner circle on Saturdays, but today I thought to have an open session so that everybody who is not the member of Communicators Digital Gurukul, they can also participate in is this AMA, and they can clear their doubt related to communication, personal growth and image building. In case you have any other question, please put in a comment box. I will address that question then and there, and join me live in the next week.